Hi, I'm Kanika. Welcome to my channel Gaiety Corridors. In this video, we will discuss all the questions which have been asked from the computer organization and architecture in GATE 2020. Okay, so the very first question is a direct mapped cache memory of 1 MB has a block size of 256 bytes. So here is a cache memory which whose size is 1 MB and it has a block size of 256 bytes. Okay, the cache has an access time of 3 nanosecond and a hit rate of 94%. This is the hit rate. During a cache miss, it takes 20 nanoseconds to bring the first word of a block from the main memory. So this is your main memory, and main memory is also divided into the blocks, and the size of the each block is 256 bytes. So it has so many words. A block has many words. So it is saying if the word is not found in the cache memory, then to bring the first word from the main memory to cache memory, it takes 20 nanosecond, and the subsequent words takes only 5 nanosecond. Understood? So the word size is 64 bits. Word का size कितना है? 64 bits. So average memory access time in nanosecond what will be? So we have to calculate the average memory access time in nanosecond. So this question has been asked from cache fetching. Okay, and I want to tell you that we are going to launch a new series in which we will discuss all the topics of computer organization and architecture. We will be discussing there the theory, examples and the previous year question of GATE computer organization and architecture. So please do watch. So in back to the question. ओके सो यहाँ पे आप देखिए कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं. सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं. सो नंबर ऑफ द वर्ड्स पर ब्लॉक कितने होंगे. ब्लॉक का साइज कितना है 256 बाइट्स और एक ब्लॉक के एक वर्ड का जो साइज है वो कितना है 64 बिट्स. इट मीन्स इट इज़ 8 को इससे डिवाइड कीजिए तो 8 बाइट्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे 64 बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो एक वर्ड का जो साइज है वो कितना है 8 बाइट्स. सो हाउ मेनी वर्ड्स विल बी इन अ ब्लॉक. इट विल बी वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 8 and we can write it as 2 की power 3. So how many words per block. There are 2 की power 5 words per block which is equal to 32. So in a block we have 32 words, and in the question it is given that first word takes 20 nanosecond and subsequent words take 5 nanosecond. So when there is a cache miss, so what will be the access time. या हम बोल सकते हैं मिस पेनल्टी क्या होगी. इसको हम मिस पेनल्टी भी कह सकते हैं. सो व्हाट विल बी द मिस पेनल्टी. इट विल बी 20 nanosecond to fetch a single word plus 5 nanosecond for rest of the words. तो कितने वर्ड्स बच गए हैं 31 वर्ड्स बचे हैं. तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 nanosecond plus 5 and 155 nanosecond. So it is 175 nanosecond. So when there is hit here, one second. So when there is a hit it takes 3 nanosecond, and when there is a miss it takes 175 nanosecond. So what is the average memory access time. So average memory access time is equal to hit rate into access time
या हम बोल सकते हैं हिट पेनल्टी, या टू एक्सेस द कैश हाउ मच टाइम इट टेक्स, प्लस मिस रेट in the bracket miss penalty, and here will be the cash access time. ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए here is your okay, here is the CPU. If CPU wants to access the main memory, then first CPU access the cache memory. If the word is found in the cache memory, then it will access in just 3 nanosecond. If the word is not present in cache memory, then it will take the word from the main memory to cache and then access the word. So first miss penalty to bring the word from the cache to from the main memory to cache memory, it will take 175 nanosecond total, अभी हमने calculate किया है, and then it access the word from the cache memory, so it takes 3 nanosecond. So we can calculate it like this. So what will be the average memory access time? Hit rate कितनी है आपकी 94% into access time है 3 nanosecond plus 6% मिस रेट है, 3 नैनोसेकेंड एक्सेस टाइम है एंड 175 नैनोसेकेंड इज मिस पेनल्टी. तो कितना टाइम लगेगा टोटल? अगर यहाँ पे हम देखें 94 3 नैनोसेकेंड एंड 6, तो ये हो गया हमारा 100% इंटू में 3 नैनोसेकेंड प्लस 600 एंड 175 नैनोसेकेंड. So after solving this, the result will be 13.5 okay nanosecond. आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपका ये आएगा. ओके मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, फिर हम बताते हैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर. ओके सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, हिट रेट इंटू में एक्सेस टाइम प्लस मिस रेट दैट इज़ 1 माइनस एच एंड T1 प्लस T2, यही आपका फॉर्मूला है. अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. मैं आपको भी दिखाती हूँ पहले सॉल्व करके. सो दिस इज़ HT1 एंड हेयर इज़ HT1, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके सो अभी क्या बचा, T1 प्लस 1 माइनस एच T2 एंड दिस इज़ नथिंग बट मिस रेट. समझ रहे हैं? तो आपका फॉर्मूला ये है, यहाँ पर है आपका, ये तो है कैश एक्सेस टाइम प्लस मिस रेट इंटू में मिस पेनल्टी. देखिए ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर CPU एक्सेस द कैश फॉर गेटिंग एनी वर्ड. सो अगर वर्ड उसके अंदर नहीं भी है तब उस वर्ड को पहले मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लाया जाता है, तब CPU उसको एक्सेस करता है. तो फाइनली कैश तो एक्सेस करना ही करना है, और जितने मिस हुए हैं उनके लिए मिस पेनल्टी है, इसलिए हम ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है. ओके नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. In this your data path diagram is given and this is the instruction R0, R1 plus R2 and these are the following steps. इन्होंने कहा कि इन स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है. सो अगर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है R0, R1 प्लस R2, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, add the value of the R1 to the value of the R2 and the result will be stored in R0. So to solve any instruction या to perform any instruction we have a data path. According to the architecture of the computer we perform the execution of an instruction. So this is the given architecture. In this architecture this is the main memory, or this is memory address register, memory data register, instruction register, program counter,
the array of the registers. Temporary register, ALU is the circuit which performs the arithmetic and logic operations. Okay, so what is the memory address register? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम से ही बता रहे हैं कि रजिस्टर के अंदर मेमोरी का एड्रेस स्टोर है. क्यों? जब भी आपको मेमोरी से कुछ भी रीड या राइट करना होता है तब उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करा दिया जाता है. ओके, तो सीपीयू क्या करता है? सपोज सीपीयू को मेमोरी की लोकेशन 2000 पर एक डेटा को स्टोर कराना है. सो सीपीयू विल स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी डेटा रजिस्टर, will put this address 2000 into the memory address register and will give the signal to the memory, that is write signal. So now the memory will store the data from the memory data register to the location specified by the memory address register. Same as if CPU wants to fetch the data from the main memory, then CPU stores that particular address into the main memory address register and give signals to the main memory, that is read signal. Then the data is read from the main memory and put into the memory data register. Then CPU directly read the data from the memory data register through the registers, these registers. Understood? So अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले तो आप इंस्ट्रक्शन देखिए कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दी हुई है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि R2 को रीड करो, टेम्परेरी 1 को रीड करो, ALU का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करो और टेम्परेरी 2 में राइट कर दो. तो इसका मतलब है R2 को रीड करो, टेम्परेरी 1 को रीड करो और इन दोनों के ALU ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको टेम्परेरी 2 में स्टोर कर दो. तो इससे पहले भी कोई इंस्ट्रक्शन रही होगी क्योंकि हमें तो R1 + R2 करना है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी 1 है. इट मीन्स R1 की वैल्यू रीड की गई होगी जो कि टेम्परेरी 1 में स्टोर करिए. तो ऐसे यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है क्या? देखते हैं. ओके, ये रही. तो ओके, ये यहाँ पे है क्या? देखिए एक बार, टेम्परेरी 1 को राइट करना है और R1 को रीड करना है. तो यही इंस्ट्रक्शन मैंने आपके यहाँ बोली है. तो दिस इज़ द सीक्वेंस. तो सीक्वेंस हो गया 2 और ये है सॉरी दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1. तो 2-1 सीक्वेंस. अब आप देखिए ऑप्शन में कहीं 2-1 दिया है क्या? तो ऑप्शन में 2-1 गिवन है. एक तो आपका 2-1 है यहाँ पर और एक 2-1 है यहाँ पर. तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है. समझ रहे हैं? अब एक चीज़ और देखते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई. इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम काउंटर को रीड करो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को राइट करो और मेमोरी को रीड करो. ओके, फिर उसके बाद ओके, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक एड्रेस गिवन है, आप उसको रीड कीजिए, उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पुट कर दीजिए और फिर मेमोरी को रीड कीजिए. मतलब कि मेमोरी से कुछ डेटा रीड किया जा रहा है और जब मेमोरी से कुछ डेटा रीड किया जा रहा है तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर पे. बट वो डेटा क्या है? वो एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और वो एक डेटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. अभी हम आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ आएगा वो क्या हो सकता है. फिर ये कह रहे हैं कि मेमोरी डेटा रजिस्टर से रीड कीजिए और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में राइट कर दीजिए. इसका मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर से कुछ वैल्यू रीड की गई है और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पुट कर दिया गया है. इसका मतलब जो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था वो एड्रेस किसका था? वो एक इंस्ट्रक्शन का था. और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर थी? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस था उस पर स्टोर थी और उस इंस्ट्रक्शन को हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर में लिया एंड देन द इंस्ट्रक्शन इज़ ब्रॉट फ्रॉम मेमोरी डेटा रजिस्टर टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सो भी आपको समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? इट मीन्स सबसे पहले हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन गिवन है इसको मेन मेमोरी से फैच किया गया है. सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन थी फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी. सो उसके लिए कौन से यहाँ पर है? नंबर 3. उसके बाद रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम memory data register
and store it into the इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद परफॉर्म किए गए हैं ऑपरेशंस। फर्स्ट सेकंड नंबर वाला आएगा कि ये वाला जो ऑपरेशन था टेम्प्रेरी के अंदर रजिस्टर की वैल्यू गई, फिर ये वाला परफॉर्म किया गया, ALU ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। उसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि लास्ट क्या होगी। लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी कि जो टेम्प्रेरी 2 के अंदर जो रिज़ल्ट स्टोर है उसको वापस आर नोट में डालना है। देखिए इंस्ट्रक्शन में गिवन है आर नोट में डालना है। तो 2 1 देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर? द ऑप्शन इज़ दिस। देखिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, बट जब आप एग्जाम में दिस क्वेश्चन विल सॉल्व देन it will take very less time. Okay, so let's move to the next question. Okay, so the next question has been asked on pipelining. ठीक है, so this question आपका pipelining से है। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, consider a non pipelined processor operating at 2.5 gigahertz. So what do you understand by gigahertz? Hertz means clock per second. Okay, so यहाँ पे क्या गिवन है कि 2.5 gigahertz। इसका मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2.5 गीगा क्लॉक्स पर सेकेंड रन करता है। मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स रन करता है? 2.5 इंटू 10 की पावर 9 क्लॉक्स। एक सेकेंड में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 9 क्लॉक्स रन करता है। सो 1 क्लॉक साइकिल, सॉरी यहाँ पे क्लॉक साइकिल्स होगा, क्लॉक साइकिल टाइम क्या होगा? It will be 1 divided by 2.5 into 10 to the power 9 second. After solving it, it will look like this, nanosecond, 10 to the power minus 9 हो जाएगा यहाँ पर, so nanosecond, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.4 nanosecond. So CPU will run a cycle in 0.4 nanosecond. यहाँ पे क्या लिखा है कि इट टेक्स 5 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। यदि आप नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तब टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन it takes the time, and how much time it will take? 5 clock cycles, and 5 clock cycles are equal to 5 into 0.4 nanosecond, so it will take 2 nanoseconds. So I can say the time to execute one instruction is 2 nanosecond in the non pipelined processor. ये आपको समझ आ गया है? इतना ही यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या कहा है इन्होंने। सो नेक्स्ट लाइन इज यू आर गोइंग टू मेक अ 5 स्टेज पाइपलाइन आउट ऑफ दिस प्रोसेसर। मतलब अब इस प्रोसेसर को आप 5 स्टेज पाइपलाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। ओवरहेड्स associated with pipelining force you to operate the pipelined processor at 2 GHz. अब आप प्रोसेसर को 2 GHz पर ऑपरेट कर रहे हो। देखो जब आप पहले ऑपरेट कर रहे थे, जब हमारा प्रोसेसर नॉन पाइपलाइंड था, तब वो 2.5 GHz से रन कर रहा था। अब कितने से रन कर रहा है? 2 GHz से। सो वन इंस्ट्रक्शन या आई कैन से कि 1 क्लॉक साइकिल का टाइम क्या होगा? What will be the 1 clock cycle time? 1 divided by 2 gigasecond, or I can say 0.5 nanosecond. Giga means 10 to the power 9, और जब 10 to the power 9 को मुँह पर लेके जाएंगे तो it will become 10 to the power minus 9, and 10 to the power minus 9 means nanosecond. So एक क्लॉक को रन करने के लिए now our processor
टेक्स 0.5 नैनो सेकेंड्स, और पहले कितने नैनो सेकेंड से हो रहा था, 0.4 नैनो सेकेंड। सो मतलब पहले फास्टर था या अब फास्टर है, अब पहले फास्टर था ना, अब फास्टर नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ टेकिंग 0.5 नैनो सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एक क्लॉक साइकिल मतलब ऐसे, एक क्लॉक साइकिल ये दिख रही है आपको, दिस इज़ योर क्लॉक साइकिल। सो एक क्लॉक साइकिल का जो टाइम है वो क्या है, 0.5 नैनो सेकेंड, ओके। 1 सेकेंड, okay. The next line is, in a given program assume that 30% are memory instructions. So 30% आपकी क्या है, memory instructions हैं, 60% are ALU instructions and rest are the branch instructions. तो कितनी rest हैं, 10 are branch instructions. 5% of the memory instructions cause stalls of 50 clock cycles. So this is memory instructions, इसका जो 5% है वो 50 clock cycles की स्टॉल है यहाँ पर, ठीक है। Due to cache misses and 50% of the branch instructions cause stalls of 2 cycles each. So इसका जो 50% है उसके अंदर 2 क्लॉक साइकिल की स्टॉल है, understood? Assume that there are no stalls associated with the execution of ALU instruction. ALU के लिए कोई भी स्टॉल नहीं है, कोई भी स्टॉल साइकिल नहीं है. For this program, the speed up achieved by the pipeline processor over the non-pipeline processor आपको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, क्लॉक साइकिल्स निकालनी है, स्टॉल क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. आपको निकालना है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी स्टॉल क्लॉक साइकिल्स हैं, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है. सो ड्यू टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो मेमोरी इंस्ट्रक्शन में कितनी स्टॉल साइकिल्स हैं, 30% का 5% उसका 50 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है. तो ये कितना हो गया आपका, इट इज़ 100 और 100, ये आप इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, 15 और 5 ज़ा 75, 0.75 क्लॉक साइकिल्स स्टॉल्स, इतने आपकी क्लॉक साइकिल स्टॉल्स हैं. अगर हम बात करें ड्यू टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन के कारण आपकी कितनी क्लॉक साइकिल्स हैं जो स्टॉल हुई हैं, 10% का 50% का 2 क्लॉक साइकिल्स. तो कितना हो गया है, इसको सॉल्व कर दीजिए. ओके, सो इट इज़ 5 to 10 एंड 0.1 क्लॉक साइकिल स्टॉल. नहीं आ रहा है ना, पर आप एक बार और चेक कर लीजिए, कैंसिल 20 एंड 0.1. सो अगर हम टोटल स्टॉल की बात करें, टोटल स्टॉल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन वो कितनी है, 0.85. ओके. अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो स्टॉल थी वो तो हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन इसका जो 95% है वो कितनी क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, 1. जितनी भी रेस्ट हैं वो 1 पे काम करेंगी, ठीक है. देखिए होता क्या है आपका, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में, ईच इंस्ट्रक्शन टेक 1 क्लॉक साइकिल. इट मीन्स ईच इंस्ट्रक्शन वर्क एज अ क्लॉक per instruction, 1 clock per instruction for each instruction. And besides this, if there are some stalls, then it takes also the stall clock cycles. So अगर हम total updated
क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएंगी 1 + 0.85, तो कितनी साइकिल्स लेगा 1.85 क्लॉक साइकिल्स। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 1.85 इंटू कितना हमने कैलकुलेट किया था 0.5 नैनो सेकेंड। अब आप मुझे इसे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा ये। So it's giving you here 0.925 नैनो सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल गिव यू 0.925 नैनो सेकेंड। सिंपल है ना, इसको आप हाफ कर दीजिए, तो हाफ जब आप करेंगे तो कितना आएगा 925 ना, 0.925। अब हमें स्पीडअप निकालना है। स्पीडअप कैसे निकाला जाता है? एग्जीक्यूशन टाइम इन द ओल्ड मशीन एंड एग्जीक्यूशन टाइम इन द न्यू मशीन, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम इन द नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूशन टाइम इन द न्यू पाइपलाइन प्रोसेसर। सो हमें स्पीडअप निकालना है। स्पीडअप मतलब कि जो अभी एग्जीक्यूशन टाइम है, देखिए अभी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है यहाँ पर, और जबकि अगर हम प्रीवियस की बात करें तो वहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना ले रहा था 2 नैनो सेकेंड्स। ये देखिए यहाँ पे इट वाज टेकिंग 2 नैनो सेकेंड। सो यदि आपका प्रोसेसर नॉन पाइपलाइंड है तो इट इज़ टेकिंग 2 नैनो सेकेंड, एंड इफ़ इट इज़ पाइपलाइन प्रोसेसर देन इट इज़ टेकिंग 0.925 नैनो सेकेंड। देखिए टाइम में कितना वेरिएशन आ गया, कितना कम है टाइम। दिस इज़ बिकॉज पहले हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 क्लॉक साइकिल्स ले रहे थे, बट यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम 1 क्लॉक साइकिल तो होती ही होती है, प्लस उसमें थोड़ी बहुत स्टॉल साइकिल्स होती हैं, तो वो यहाँ पर कितनी थी 0.85, तो ये कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। सो ये यही पूछ रहे हैं कि स्पीड अप गेन कितना हुआ है। देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड गेन हुई है, आप इसको यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए और जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ द रिज़ल्ट। ये जो क्वेश्चन था ये आपका विदाउट ऑप्शन पूछा गया था, आपको इसके अंदर वैल्यू लिखनी थी एग्ज़ाम में। सो इसके लिए आई थिंक 2 मार्क्स आपके डेडिकेटेड थे। ओके फाइन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। 1 second. So here is a formula in pipelining to calculate the CPI, clock per instruction, 1 plus sigma stall frequency into stalls in clock cycle, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन थे जिसके अंदर स्टॉल था। वन इज़ द मेमोरी ऑपरेशन एंड अनदर वन इज़ द ब्रांच ऑपरेशन। सो ड्यू टू द मेमोरी ऑपरेशन कितने स्टॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। स्टॉल की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30% एंड देन 5% एंड इनटू कितनी स्टॉल साइकिल्स थी 2, देन प्लस, और ड्यू टू ब्रांच ऑपरेशन कितनी स्टॉल्स थे इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। सो इट वॉज 10% इंटू 50% इंटू यहाँ पे क्लॉक स्टॉल से 2, आई एम सॉरी यहाँ पर स्टॉल्स आई थिंक कुछ और थे 50, इट इज़ द 50 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। सो इट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द CPI, clocks per instruction in the pipeline processor. So in the pipeline processor to calculate the CPI you can use this formula directly, okay, or you can find the result. Now solve the next question. Okay, in this question a computer system with a word length of 32 bits, एक कंप्यूटर की जो CPU है उसकी वर्ड लेंथ कितनी है 32 बिट्स। इट मीन्स आपका जो CPU है वो 32 बिट्स का है, ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स का है। इट हैज़ अ 16 MB बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी। सो आपकी जो मेन मेमोरी है उसका जो साइज है वो है 16 MB
और ये बाइट एड्रेसेबल है. बाइट मीन्स बाइट बाई बाइट CPU एक्सेस द वर्ड. एक वर्ड मतलब बाइट बाई बाइट भी एक्सेस दिस वर्ड. एक यहाँ पर और मेमोरी दी है, दैट इज़ अ 64 KB 4-way set associative cache memory. So it is 64 KB and 4-way set. ब्लॉक साइज इज़ 256 बाइट्स. वो ब्लॉक साइज कितना है? 256 बाइट्स. और यहाँ पर एक ब्लॉक का साइज कितना है? 256 बाइट्स. सो क्योंकि इट इज़ बाइट एड्रेसेबल, इट मीन्स एक एक बाइट को एक्सेस किया जाएगा. सो हमें एक बाइट का इस तरीके से आपको एड्रेस फाइंड करना है. सो व्हाट विल बी द एड्रेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 to the power 4 into 2 to the power 20 बाइट्स. और here 2 to the power 6 into 2 to the power 10 bytes. It means physical address will be of the 24 bits. Understood? And here physical address for each okay, it is a 16 bits, 2 की power 16 bits. Fine. अब इसके अंदर आपको दिया गया है कि इट इज़ अ 4-way सेट एसोशिएटिव. तो आपको फॉर्मेट याद रखना होगा. अगर सेट एसोशिएटिव है उसका क्या फॉर्मेट होता है, किसी भी फिज़िकल एड्रेस को आप किस तरीके से फॉर्मेटाइज करते हो. तो इट इज़ योर टैग, दिस इज़ सेट एंड दिस इज़ ब्लॉक ऑफसेट. सो अभी आपको पता है ब्लॉक का साइज कितना है? 256 बाइट्स. और बाइट बाइट कर हम वर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं. तो to represent the each word in the block we required 8 bits. So the block offset is of 8 bits. It represents the number of the sets in the cache memory. So how many sets are in the cache memory? First, to calculate the number of the sets in the main memory, we need to calculate the number of the lines in the cache memory. And then we have to divide it by the सेट. एक सेट के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स. 4 से आपको इसको डिवाइड करना होगा. देखिए आपकी जो कैश मेमोरी है वो लाइन से मिलकर बनी है. लाइन मीन्स ब्लॉक से मिलकर बनी है. और हर एक सेट कुछ लाइन से मिलकर बना है. तो यहाँ पर हर एक सेट 4 लाइन से मिलकर बना है. सो कितने सेट्स होंगे? जितने की नंबर ऑफ द लाइन्स होंगी. एंड नंबर ऑफ लाइन्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? कैश साइज से एंड ब्लॉक साइज से. तो यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं? 2 की पावर 8 लाइन्स हैं. सो इट इज़ 2 की पावर 8 लाइन्स is divided by 2 की power 2 and that is 2 की power 6. So in the given cache memory there are 2 to the power 6 sets and to represent the each set we required 6 bits. So total यहाँ पर bits कितनी हो गई हैं? It is 14 bits. अब देखिए आपका जो फिज़िकल एड्रेस है वो यहाँ पर 24 बिट्स का है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 24 बिट्स है. सो जो टैग बिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 10 होंगी. अब आगे हम चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग 4 फिजिकल एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन. ओके, A1 आपका ये दे दिया है, ये और 3-4 एड्रेस दिए हुए हैं. लेकिन आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है. यहाँ पर 6 है. हेक्साडेसिमल की जो डिजिट्स है कितनी है? वो 6 है. 1 2 3 4 5 6. 6 मीन्स 32 बिट्स हो गई. बट हमने तो भी कैलकुलेट किया कि हमारा जो फिज़िकल एड्रेस है वो 24 बिट्स है. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है. एक्चुअली हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि हमें वर्ड लेंथ क्या गिवन है और फिज़िकल एड्रेस की लेंथ कितनी है. आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है. तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पर हमने तो यहाँ पे 24 बिट्स निकाला है, एग्ज़ाम में कुछ और दे दिया गया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ऐसा क्यों किया है एग्ज़ामिनर ने. ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. एग्जैक्टली ऐसा हमने नहीं पढ़ा है. बट आप ये देखो इसके अंदर पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि A1 एंड A4 आर मैप टू द डिफरेंट कैश
और सेम कैश सेट, हमें ये सब निकालना है। एंड वी नो कि सेट के लिए हमें केवल 6 बिट्स चाहिए। कितनी? 6 बिट्स चाहिए, वो भी कहाँ से? LSB से। तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसकी लेंथ कितनी है फिज़िकल एड्रेस से। तो आप इसको कैलकुलेट इस तरीके से करो, 42C8A4। आप सबसे पहले इसको बिट में कन्वर्ट करो। तो आप देखिए एग्ज़ाम में आप एक ये भी कर सकते हो कि पूरा का पूरा आप बिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट विल कंज्यूम अ गुड टाइम। ओके, तो अभी आप देखो कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेम कैश सेट में है और कौन सा डिफरेंट कैश सेट में है, सिर्फ 6 बिट्स से। तो अगर मैं इन 8 बिट्स को एक्सक्लूड कर दूँ तो 6 बिट्स मेरी इनसे मिलकर मुझे मिल जाएगी। तो कैसे? सी के लिए हम क्या करते हैं, देखिए A1010 1011 1100 1101 एंड 1110 1111 BCDEF। मैंने ये सब हेक्साडेसिमल को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है बाइनरी में। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डिकोड इट। तो सी का वैल्यू कितना है? 1100। 8 का क्या होता है? 100। तो मुझे सिर्फ बीच की 2 लेनी है और उन्हीं से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा नहीं। सो 54 को मैं एक्सक्लूड करूँगी, सिर्फ 68 के लिए लूँगी और 68 की वैल्यू क्या होगी? 0110100 नेक्स्ट इज़ 6A को मैं एक्सक्लूड करूँगी और सिर्फ 28 को लूँगी क्योंकि मेरा इन्हीं से काम चल जाएगा। 0010 और 8 का क्या है? 1000। द नेक्स्ट इज़ 5E, इनको मैं एक्सक्लूड करूँगी और नेक्स्ट 2 हेक्सा डिजिट्स लूँगी, दैट इज़ फॉर 8। सो 0100 एंड 1000। सो for the set we have the 6 bits, and which are the 6 bits? The 6 bits are these. अब इसमें आप देखिए कि कौन सी मैच हो रही है और कौन सी नहीं। तो अगर हम देखें ये दोनों मैच हो रही हैं, इट मीन्स A2 and A3 फिजिकल एड्रेस विल बी मैच टू द सेम सेट। एक सेट के अंदर बहुत सारी लाइन्स हैं, सो दीज 2 एड्रेस विल बी मैच टू द सेम सेट। एंड वो सेट कौन सा है आपका? A2 एंड A3। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, A2 एंड A3 आर मैप्ड टू द सेम कैश सेट। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a processor has 64 registers and uses 60-bit instruction format. It has 2 types of instructions, I-type, R-type, and each I-type instruction contains, तो मैं यहाँ पे बनाती चली जाती हूँ, each I-type की जो instruction है वो contains करती है एक तो opcode, दूसरा register name, and third is 4-bit immediate value. And each R-type instruction contains an opcode, 2 registers, तो एक रजिस्टर यहाँ पर है और दूसरा रजिस्टर यहाँ पर है. If there are 8 distinct I-type opcodes, then the maximum number of distinct R-type opcodes is. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन रजिस्टर्स. ठीक है, रजिस्टर्स पे बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कौन कौन सी हैं? जनरल, एक तो आपकी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है. तो लाइक कि आप वहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका आर टाइप हो गया. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऑपकोड के लिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. रजिस्टर के लिए कितने रजिस्टर्स हैं? 64 रजिस्टर्स हैं. So to represent each register we need 6 bits because 2 की पावर 6 रजिस्टर्स हैं. अगर आपको हर एक रजिस्टर को एक एड्रेस देना है तो वो कितने बिट्स का होगा? 6 बिट्स का होगा. So here register address will be of 6 bits and this is of 4 bits. Instruction is of 16 bits. सो ऑपकोड आपका कितनी बिट्स का हो गया? 6 4 10. 16 में से 10 घटाइए, कितना बचा? 16 में से 10 घटाने पे 6 बिट्स.
सो जो आपका ऑप कोड है वो कितनी बिट्स का है, 6 बिट्स का। किसके अंदर, आई टाइप इंस्ट्रक्शंस में। इन्होंने कहा यहाँ पे सिर्फ हम 8 ऑप कोड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स यदि हमारी 6 बिट्स इस तरीके से हैं तो इसके 8 कॉम्बिनेशंस आई टाइप यूज़ कर रहा है। मैं जो हूँ यहाँ पे MSB की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ 6 MSBs ली हैं। आगे का कुछ भी हो, आगे यहाँ पे 6 बिट्स हैं, यहाँ पे 4 बिट्स हैं, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है, उनका कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ इन 6 बिट्स की। इनके जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होने चाहिए एंड दीज कॉम्बिनेशन आर 8 कॉम्बिनेशन। सो आप इस तरीके से इनको यहाँ पर लिख दीजिए। सो दीज 8 combinations are fixed to represent the opcode in the I type instruction. ओके, इसको भी हम फिल कर देते हैं इस तरीके से। फाइन। अभी ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो कितनी इंस्ट्रक्शन हो गई हैं, 8 इंटू 2⁶ एंड 2⁴। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये कितनी आई टाइप इंस्ट्रक्शन है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आई टाइप इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं तो वो होंगी 8 इंटू 2⁶ इंटू 2⁴। अब आर टाइप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रजिस्टर्स के लिए 6 बिट्स, इस रजिस्टर्स के लिए भी 6 बिट, टोटल है 16 बिट्स। तो कितनी बची हैं, 4 बिट्स। 6 6 12 और 4 16, 4 बिट्स बची हैं। तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर केवल 4 बिट्स चाहिए टू रिप्रेजेंट द ऑप कोड। सो यहाँ पे देखिए, आपने ये वाला जो कॉम्बिनेशन था वो यूज़ कर लिया है। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 बिट्स। अब ये इन 6 बिट्स और इन 6 बिट्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप कोड के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है जो हमें देना है। सो एक तो ये कोड हो गया, दूसरा कोड क्या होगा, ये अनदर कोड, दिस वन। सो इस तरीके से कितने कोड्स होंगे, टोटल 14 ऑप कोड्स होंगे या नहीं। 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 16 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिनमें से मैंने 2 कॉम्बिनेशन आई टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए ले लिए हैं। तो बचे कितने, 14 ऑप कोड्स। समझ आया आपको। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14। एक तो ये वाला तरीका है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था, अब देखिए आपको पता है कि 8 ऑप कोड्स थे आई टाइप इंस्ट्रक्शन में, तो टोटल जो इंस्ट्रक्शन है वो है 2⁶, 2⁴। ठीक है। अगर हम आर टाइप इंस्ट्रक्शन की बात करें, मुझे नहीं पता है ऑप कोड कितने हैं, बट मुझे ये पता है कि इसके बाद कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो टोटल अगर x ऑप कोड्स हैं तो टोटल आर टाइप इंस्ट्रक्शंस कितनी होंगी, इतनी होंगी। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस बन सकती हैं, 2⁻16, क्योंकि जो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस थे वो कितने थे, 2⁻16 कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से 8 2⁻6 2⁻4 कॉम्बिनेशन चले जाते हैं आई टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए एंड इतने कॉम्बिनेशन चले जाते हैं आर टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए। अब आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजीली। सो आप निकाल दीजिए 3 + 6 + 4 + x इंटू 2⁻12 and 2⁻16. So it is 2⁻13 plus x into 2⁻12 is equal to 2⁻16. अगर मैं 2⁻12 यहाँ से बाहर ले लूँ तो यहाँ क्या बच रहा है, 2x, और जब 12 इसमें से जाएगा दिस बिकम 16, सो x इज़ इक्वल टू 14। सो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, और आप ऐसे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ आर ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीट हेयर। Thank you for listening this video. I hope you have understood all the question solution, and if you have any doubt then please write me in the comment box. I will try to answer there. Thank you.